Greetings to one and all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Happy Sunday to everyone. It is indeed our joy and a privilege to be able to introduce to our today's preacher. His name is Brother Robin Matthew. Robin Matthew hails from Mumbai and is currently the Mumbai staff for UESI. He is an adventure-based counselor engaged into outdoor adventure camping. God has called him to reach out to the youth through the outdoor ministry. Today he shall be sharing on the topic Hope Transforms Our Perspectives from Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. We hope and pray that our time together will be blessed. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आजोड़ नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। आप सभी को रविवार का सलाम। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद और सम्मान की बात है कि हम आज के प्रचारक का परिचय करवा रहे हैं। उनका नाम है भाई रॉबिन मैथ्यू। रॉबिन मैथ्यू मूल मुंबई से हैं और वे फिलहाल मुंबई में UESI के स्टाफ के तौर पर सेवकाई कर रहे हैं। वे रोमांच आधारित काउंसलर हैं जिन्हें बाह्य रोमांच सबर कैंपिंग के द्वारा युवाओं में सेवकाई करने का बोझ है। आज वे आशा हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देती है। इस विषय पर हबक्कुक के 3 अध्याय के 17 से लेकर 19 तक के वचनों में से बांटेंगे। हमारी ये आशा और प्रार्थना है कि ये समय हम सब के लिए आशीषित रहे। Hello everyone, it's a joy for me to bring God's word today. आप सबको नमस्कार। आज प्रभु का वचन आपके मध्य में बांटना मेरे लिए बहुत ही आनंद का बात है। I hope as we study today's scripture portion, the Lord will speak to you and impact your life. मैं आशा रखता हूं कि अब आज हम जब इस वचन पे मनन करें तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा। Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful time you have given us. We pray that you would speak to us. We pray that as we study your word, we would be able to hear your voice and our lives would be touched. In your name we pray and ask. Amen. Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 19. आइए हम अपने बाइबलों को खोलें और हबक्कुक का 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद को हम पढ़ेंगे। This is what it says. Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he has made my feet like hinds' feet, and makes me walk on my high places. और हबक्कुक 3:17 से 19 इस प्रकार कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। The past few months has been a struggle for all of us. और पिछले कुछ महीने हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संघर्ष समान बने। Each one has had to face some hardship or the other. और हम प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई मुश्किलों में से गुजरना ही पड़ा है। To add to our problems, we can't see any hope in future, at least for the next few months. और हमारी समस्याओं में और कुछ जोड़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि शायद आगे के कुछ महीनों में भी कुछ शायद आशा की किरणें हमें ना दिखे। The number of COVID cases in our country has been rising each day. और दिन प्रतिदिन कोविड के जो केसेस है हमारे देश के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। Unemployment is increasing each day. और दिन प्रतिदिन जो बेरोजगारी है हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है।
Our GDP has fallen to the lowest in history. और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इतिहास में सबसे नीचे जा चुकी है अभी. People are getting sick and have no help from each other. और लोग बीमार पड़ रहे हैं परंतु दूसरे लोग भी उनको मदद नहीं कर पा रहे या फिर नहीं कर रहे हैं. There's a sense of uncertainty and people don't know what they should be doing. और एक प्रकार की अनिश्चितता हर एक चीज में दिख रही है और लोगों को शायद पता भी नहीं चल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए या फिर वो क्या करे. Each one of us are becoming anxious. और हम प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बहुत ही चिंतामय और बहुत ही डर में हम जी रहे हैं. A lot of our plans are not working out. और हमारे कितने भी आयोजन प्रयोजन कोई भी काम नहीं कर रहे हैं अभी. Our impatience is now building up. हमारे अंदर जो एक प्रकार की धीरज होनी चाहिए वो धीरज कम होती जा रही है अभी. So when we look at the book of Habakkuk, we see as we study this book, it really speaks to us in our current context. और हम जब इस हबाकुक की पुस्तक को देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि हबाकुक की पुस्तक हमारे आज के संदर्भ के साथ सीधी रीति से बातचीत कर रही है. We see prophetic insights of an impatient prophet. और हम यहाँ पर एक अधीर ऐसे नबी की भविष्यवक्ता का जो उसका कार्य है वो हम यहाँ पे देख पाते हैं. We see this prophet who bravely takes God, the God of Israel, to task for inaction in the face of justice. और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से यह जो नबी है ये बहुत ही बलवान होके या फिर बहुत ही हिम्मतवान होके इजराइल के परमेश्वर को कार्यरत करने के लिए वो मजबूर करता है या फिर कार्यरत करने के लिए वो कहता है कि इस अन्याय के समय के अंदर वो न्याय को करे. The book has only 3 chapters, but it's so relevant in our current world today. और इस पूरे पुस्तक के केवल 3 ही अध्याय है परंतु हम देखने जाए तो आज के संदर्भ के लिए ये कितना लागू पड़ने वाला पुस्तक. Chapter 1 begins with Habakkuk's complaint. सबसे पहला अध्याय जो है वो हबाकुक की शिकायत से शुरू होता है. And he asks why in the face of pervasive and enduring wrongdoing and injustice has the Lord failed to act. और वो पूछता है कि इस तरह से जब निरंतर केवल सिर्फ बुराई हो रही है, अन्याय हो रहा है सब जगह पे, तो क्या परमेश्वर कार्य करने में निष्फल हुआ है? In chapter 2, we see God giving Habakkuk a vision. और फिर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर हबाकुक को एक दर्शन दिखाते हैं. And in this vision, God kind of compensates for the loss that the nation of Israel has faced. और इस दर्शन के अंदर ऐसा लग रहा है शायद परमेश्वर एक प्रकार की भरपाई कर रहे हैं जिस प्रकार का नुकसान इस पूरे देश को हुआ है उसके लिए. And Habakkuk in chapter 3, we see Habakkuk praying as he sees God's power and exploits as a warrior. और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि हबाकुक प्रार्थना कर रहा है जब वो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखता है, उसको एक योद्धा के समान देखता है. And in the end of chapter 3, what we read, we see an reaffirmation of trust in Yahweh. और फिर तीसरे अध्याय के अंत में हम देखेंगे या फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से एक बार यहोवा पर विश्वास हो या फिर जो भरोसा था उसकी पुनः स्थापना हुई है. And this reaffirmation is done by Habakkuk, who is emotionally shaken, yet he is confident. और यहाँ पर ये जो विश्वास या फिर भरोसे की पुनः स्थापना हबाकुक के द्वारा की गई है, जो भावनात्मक रीति से तो पूरा हिल गया है परंतु फिर भी उसमें बहुत ही दृढ़ विश्वास है. And looking in this passage, one of the theme that comes very clearly on which I want to speak about is hope transforms our perspective. और इस पूरे शास्त्र पाठ को देखते हुए एक जो मुख्य शीर्षक या फिर एक मुख्य सीख जो हमारे मनों में आती है, जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं, वो ये है कि आशा जो हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देती है. Now, Habakkuk belonged to a very small and weak nation.
अब ये हबक्कुक जो था, ये नबी बहुत ही छोटे और बहुत ही कमजोर राज्य में से था, There were great and brutal armies that were on the move. और उनके सामने बहुत ही महान और बहुत ही निर्दयी दुश्मन उनके सामने वो चढ़ाई कर रहे थे। Egypt had occupied his land, claiming to protect it. और मिस्र ने भी उसके देश के ऊपर कब्जा जमाया था और ऐसे कह रहे थे कि वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। Just as we see some smaller nations being protected by these bigger nations today. और जिस तरह से हम देखते हैं कि आज के समय में भी जो छोटे छोटे कुछ देश है, उनको बड़े जो देश है वो सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर राज करते हैं। Apart from the Egyptians, the Chaldeans were also progressing towards Habakkuk's nation. और मिस्री लोगों के अलावा खालदी लोग जो थे, वे भी हबक्कुक के देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे। And Habakkuk saw that these Chaldeans were stronger than the Egyptians. और यहाँ पर हबक्कुक ने देखा कि ये जो खालदी लोग थे वो मिस्र के लोगों से ज्यादा बलवान थे। And he just wondered, where's the hope in this? और फिर वो सोचने लगा कि यहाँ पर आशा कहाँ है, Because this just meant you're handing over the sword from one tyrant nation to another tyrant nation. और इसका मतलब तो यहाँ पर यही हो रहा है कि एक तानाशाही देश के से आप तलवार लेके दूसरे तानाशाह के पास आप दे रहे हो, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। In fact, if we look at chapter 1 from verse 7 to 11, यदि हम देखें पहला अध्याय 7 से 11 पद के अंदर, it says the Chaldeans were gathering nations like sand. और वहां पर लिखा है कि खालदी जो लोग थे वे देशों को रेत के समान जमा कर रहे थे, Without discrimination, and they've had no resistance from these nations. बिना कोई भी प्रकार की तोलमोल किए, और यहाँ पर उनके सामने खड़े होने वाले भी कोई भी देश नहीं थे यहाँ पर। These Chaldeans were bitter and they were very fast. और ये खालदी जो लोग थे वो बहुत ही कड़वे थे और बहुत ही तेज थे। They were terrible and dreadful. वो बहुत ही भयंकर और भयावह थे, They were filled with violence. और वो हिंसा से भरे हुए थे। In fact, they built their empire with the blood of people. दरअसल में उन्होंने तो अपना जो साम्राज्य पूरा है वो लोगों के खून पर बनाया है। Their victims were as many as the sand of the sea. और उनके द्वारा घायल या फिर कत्ल किए गए जो लोग थे वो रेतों की कण के जितने थे। At that time, nobody could stop them. और उस समय में कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता था। It literally meant that there was no political hope for Habakkuk's nation, Judah. और इसका मतलब दरअसल में तो ये होता है कि कोई भी प्रकार की राजनीतिक मदद इस हबक्कुक के देश जो यहूदा है इसको कोई मदद नहीं कर सकता है। All Habakkuk could see in the future was slavery, torture, destruction and death. और भविष्य में हबक्कुक अगर कुछ देख सकता है तो वो केवल इतना है कि एक प्रकार की गुलामी, सताव, नाशवंतता और मृत्यु। And it was in that particular time, that most hopeless time, when Habakkuk spoke these great words. और फिर उस तनावजनक, उस भयंकर मुश्किल भरे समयों के अंदर हबक्कुक ने इन शब्दों को कहा। In fact, if we look in very simple words, this is what he means. दरअसल में यदि हम एकदम साधारण शब्दों में अगर देखना चाहे तो वो इस प्रकार कह रहा है, When worst comes to worst, जब बुरे से बुरा आए, when every earthly resource is gone, जब पृथ्वी पर के सारे स्रोत चले जाए, yet I will rejoice in Jehovah. तो भी मैं यहोवा में आनंद मनाऊंगा। I will rejoice in the God of my salvation. और मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मैं आनंद मनाऊंगा। How can a man do this? कोई मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? Where does he get this
positivity, optimism in such a bad time? और इतने बुरे परिस्थिति के अंदर इतनी हकारात्मकता उसके अंदर आती कहां से है? This is quite surprising, and this is what we will explore today. और ये अब तो काफी शायद चौंका देने वाली बात है, और शायद इसी बात पर हम देखना चाहेंगे आगे आज। And so the first thing that I want to bring about from the life of Habakkuk is seeking hope in the right place. और सबसे पहला मुद्दा जो मैं आपके साथ हबक्कुक के जीवन में से बांटना चाहता हूं वो ये है कि आशा को सही जगह में ढूंढना। You see, Habakkuk had an ongoing practical faith with God. यहाँ पे देखिए कि हबक्कुक का एक बहुत ही व्यवहारू विश्वास था जो परमेश्वर के ऊपर चलता ही रहता था निरंतर। And so he was able to look at his rising problems और इसीलिए वो जो उभरते हुए प्रश्न थे, मुश्किलें थी, उनको वो देख पाता था। and he was able to look from the conviction that God is in control. और वो उन समस्या को इस दृष्टि से देखता था कि परमेश्वर के नियंत्रण में अब भी सब कुछ है। Though he was having trouble in comprehending God's plan of action, भले ही वो शायद परमेश्वर के जो कार्यों का जो आयोजन है या फिर जो कार्यों का जो आयोजन है उसे समझने में उसको शायद मुश्किल हो रहा, especially in the midst of all these tragedies, it was difficult for him to understand. और इन सब त्रासदिकताओं के मध्य में परमेश्वर के कार्य को समझना शायद उसके लिए मुश्किल था। He believed that life is ultimately rooted in God. उसने इस बात पर विश्वास रखा हमेशा कि जीवन अंततः परमेश्वर में ही है। It was this faith that actually disturbed him a lot. और दरअसल में ये विश्वास था जिसने उसे निरंतर परेशान करता रहा। Because if he would not have this faith, पर क्योंकि यदि उसके पास अगर ये विश्वास नहीं होता था इस प्रकार का, he would have simply linked these tragedies. तो उसने शायद इस प्रकार की त्रासदिक जो बातें थी, he would have linked to human greed and selfishness. तो शायद उसने ये जो भी त्रासदिक बातें थी उनको मानवीय घमंड या फिर मानवीय स्वार्थीपने के साथ शायद जोड़ दी होती थी। And he would have just accepted his fate as it is. और शायद उसने अपने नसीब को जैसा था वैसा ही स्वीकार लिया होता था। But because he believed that God is in control, परंतु क्योंकि उसने विश्वास किया कि अब भी परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है, it disturbed and confused him a lot. तो इसकी वजह से वो निरंतर परेशान होते रहा और वो बहुत ही उलझन में पड़ता रहा। How can such a God allow such tragedies to affect his people? क्यों परमेश्वर इस प्रकार की त्रासदिकताओं को अपने लोगों के ऊपर आने दे सकता है? I think in our current context of the pandemic, मैं मानता हूं कि आज का अभी का ये जो वैश्विक महामारी का जो पूरा संदर्भ है, with oppression, injustice, hatred, uncertainties, all going around, और हमारे इर्द गिर्द जो भी चल रहा है, जिस प्रकार का दबाव, अन्याय या फिर नफरत की भावना या फिर अनिश्चितता, इन सब के मध्य में we might be thinking the same question that Habakkuk would have been thinking. हम भी शायद इसी प्रकार के प्रश्नों को अपने मनों में सोच रहे होंगे जो हबक्कुक सोच रहा था। What Habakkuk did is he decided to get a response directly from God instead of finding it himself. परंतु हबक्कुक ने जो सोचा वो ये कि जो प्रतिसाद है वो परमेश्वर से लेगा, खुद नहीं ढूंढेगा। So if we look at Habakkuk chapter 2 verse 1, हबक्कुक 2:1 में इस प्रकार लिखा है, I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. There I will wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे परमेश्वर क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं। He decided to wait on God till God responds to his complaint. उसने परमेश्वर के लिए राह देखने का उसने निर्णय लिया जब तक परमेश्वर जवाब ना दे तब तक। And as he looked from his watchtower, और जैसे ही उसने वहां पर पहरे के ऊपर खड़ा रह के उसने देखने का सोचा,
his faith in God was strengthened. उसका जो परमेश्वर पर का जो विश्वास था वो ज्यादा बलवंत हो गया He found afresh in this God और वो इस परमेश्वर में एक नई रीति से reasons which would help him to rejoice. ऐसे कारण ढूंढ पाया जिससे कि वो परमेश्वर में आनंद मना पाए Even though he could not understand God's functioning, भले ही परमेश्वर किस तरह से कार्य कर रहा है उस रीति को वो समझ नहीं पाया nor could he understand the plans for the world, और परमेश्वर का पूरे विश्व के लिए क्या आयोजन है वो भी वो समझ नहीं पाया he realized that it was much better for him to seek hope in this living God और उसने ये अपने जीवन में उसने अनुभव किया कि ये बहुत ही अच्छा है कि वो अपनी आशा को जीवित परमेश्वर में ढूंढे unlike those Chaldeans in chapter 2 verse 18 to 19 who put their trust on images that were fashioned by themselves. और उन खालदियों के समान नहीं जिस प्रकार दूसरे अध्याय 18 और 19 में लिखा है जिन्होंने अपना जो भरोसा था वो ऐसी प्रतिमाओं पर रखा जो उन्होंने खुद बनाई हुई थी Habakkuk realized that though he was not able to comprehend God's plan, हबाकुक ने ये विश्वास किया ये समझ पाया वो कि भले ही वो परमेश्वर के आयोजन को समझ नहीं पा रहा है nor was he able to see a definite immediate solution to his problems, और वो अपनी समस्याओं का कोई दृढ़ या फिर तात्कालीन कोई भी उपाय भी शायद वो देख नहीं पा रहा था it at least has filled him with hope on a God who responds to his complaint. परंतु उसे कम से कम इस बात से भर दिया है कि उसकी आशा जो है वो ऐसे परमेश्वर में है जो उसकी शिकायतों के लिए प्रतिसाद देता है प्रत्युत्तर देता है It is this very hope that gives him the courage और यही आशा है जो उसे बलवान उसे सामर्थ्य देती है to rejoice in the face of painful circumstances. कि वो दर्दजनक ऐसे परिस्थितियों के अंदर भी वो आनंद बना सके If you haven't had an opportunity to put your faith in God, यदि अब तक आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिला है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रख सके अपना I would invite you to join in this journey. को न्योता देना चाहता हूं कि आप इस यात्रा में हमारे सहभागी बने In the middle of a lot of problems, समस्याओं अनेक ऐसी समस्याओं के मध्य में we may get confused. हम शायद काफी बार उलझन में पड़ जाए Maybe we may even get exhausted trying to solve these problems. और शायद इन समस्याओं को हल करते करते हम शायद थक भी जाए And it is at that time we would be really desperate looking for a genuine hope. और ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम इतने हम चिंतातुर हो जाएंगे कि हम एक आशा को ढूंढने के लिए निकलेंगे And quite often our search for hope, we keep going around in many different places. और हम हमारी आशा को ढूंढते हुए हम शायद अलग जगहों में पहुंच जाते हैं Let me give you an assurance today. मैं आज आपको एक सांत्वन एक खातरी देना चाहता हूं God has given us an open access to reach out to him. परमेश्वर ने हमेशा अपने दरवाजे हमारे लिए खुले रखे हैं कि हम कभी भी उन तक पहुंच सके With all our baggage, हमारे जो भी बोझ है सब चीजों को लेते हुए every single thing that is pulling us down, हर एक ऐसी चीज जो हमें नीचे खींच रही है we can just reach out to him. हम परमेश्वर के साथ सीधे पहुंच सकते हैं It is in him that we will find hope. और हम परमेश्वर में ही हमारी आशा को ढूंढ पाएंगे The second aspect that I want to share through the life of Habakkuk और जो दूसरा मुद्दा जो मैं हबक्कुक के जीवन से बांटना चाहता हूं is proclaiming our hope in the right way. कि हम सही रीति से हमारे आशा की हम घोषणा करें You see, Habakkuk lived in an agricultural land. आप ये याद रखिए कि हबक्कुक एक खेतीबाड़ी वाली जगह में वो रह रहा था And their existence depended on the success of the crop
and on the animals that are. और उनकी जो हयाती है या फिर उनका जो जीवन है वो पूर्ण रीति से एक तो फसल पर और उनके पास जो जानवर थे उन दोनों पर निर्भर था. Which is why it is very shocking when he says, इसीलिए ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है जब ये कहता है, For though the fig tree shall not flourish, neither shall fruit be in the vines, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, the labor of the olive shall fail, जलपाई के वृक्ष के केवल धोखा पाए जाए, the fields shall yield no food, और खेतों में न अन्न उपजे, the flock shall be cut off from the fold, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, and there shall be no herd in the stalls, और थानों में गाय बैल ना हो, yet I will rejoice in Jehovah. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा. I will rejoice in God of my salvation. मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न रहूंगा. A man who can talk like that जो व्यक्ति इस प्रकार से बात कर सकता है, has something to say to us even in our present context. आज के हमारे इस अभी के संदर्भ के अंदर भी इस व्यक्ति को हमारे लिए हमसे बात करने के लिए कुछ है उसके पास. You see, Habakkuk's hope was not merely an abstract idea. हबक्कुक की जो आशा थी वो कोई काल्पनिक बात नहीं थी जो शब्दों में केवल हो. It was not an idea that he could just merely talk about, ये कोई ऐसा विचार नहीं था जो केवल वो उसके बारे में सिर्फ बात करे, but instead he made it personal and practical. परंतु उसने तो इस आशा को व्यक्तिगत और व्यवहारू बनाया. He did not just say something and left it out, उसने बस कुछ कहकर छोड़ नहीं दिया, but rather he decided to proclaim how this newfound hope affects the various areas of his life. परंतु उसने तो ये निर्णय लिया कि ये जो आशा है जो उसके जीवन के अनेक ऐसे पहलुओं के अंदर कार्यरत है, उस आशा को वो किस तरह से घोषणा करे. Habakkuk's word reinforces. और हबक्कुक का जो शब्द था वो फिर से एक बार इस बात को सामर्थ्य देता है, Instead of weakening our hope in God. और हमारा परमेश्वर के ऊपर की जो आशा है वो कमजोर ना हो. Habakkuk tested his words in life before he spoke about it. और हबक्कुक ने तो दरअसल में जो शब्द कहे उससे पहले उन शब्दों को अपने जीवन के अंदर उसका अनुभव किया उसने. He applied these words in his ongoing life experiences. और उसने अपने जीवन में चलते हुए जो अनुभव थे उसके अंदर इन शब्दों को उसने शामिल किया, उसको लागू किया. And he reflected on the impact of his words in the face of tragedy. और इस त्रासदिकता के पूरी परिस्थिति के अंदर उसने अपने खुद के शब्दों के ऊपर प्रकाश डाला. Habakkuk realized that this hope has transformed his perspective. और हबक्कुक ये सावधानता में आया कि इस आशा ने उसकी दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया. From being restless and uncertain of tragedies, और एक प्रकार से अनिश्चितता में बहुत ही हक्के बक्के हो जाने के बदले इस प्रकार की त्रासदिकता के परिस्थिति के अंदर he is now at peace and is prepared to look at these tragedies from a different view. और वो अभी एक प्रकार की शांति में है और वो एक प्रकार से तैयार है कि इस प्रकार की त्रासदिकताओं को वो अलग दृष्टिकोण से, अलग नजरिए से देखे. A perspective of contentment in the midst of scarcity. और एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंदर वो कमतरता में भी संतुष्टि का अनुभव करे. Fulfillment in the midst of poverty. और गरीबी में भी भरपूरिता का अनुभव वो करे. And adventure in the midst of difficulties. और मुश्किल समयों में भी रोमांच का अनुभव करे. Habakkuk was able to look at the future with renewed hope. और एक नई आशा के साथ हबक्कुक भविष्य को देख पाता था. A hope of facing new challenges at greater heights. एक ऐसी आशा जिसके अंदर वो नई चुनौतियों को
नई ऊंचाई से उसका सामना करे। He says that God would make his feet like the feet of the deer. वो कहता है कि परमेश्वर उसके पांवों को हिरणों के समान बनाएगा। If you observe a deer, the feet of a deer is very thin. अगर आप किसी हरण को देखें तो आपको पता चलेगा कि हरण के जो पांव है वो बहुत ही पतले होते हैं, And still it can carry its proportionately large body on rocky paths and cliffs. परंतु फिर भी हर एक प्रकार की पथरीली जमीनों में या फिर खाइयों की जगह पे भी वो उसके जो भारी शरीर है उसको वो पतले पैर उठा के चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। Let me remind you, the mountains of Judah are filled with gravel and rocks all over. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि यहूदिया में जो पर्वत है, जो पहाड़ है, वो बहुत ही कंकड़ और पत्थरों से भरे हुए हैं हर जगह पे। So there is a high possibility of someone slipping or tripping if you move swiftly on top of a mountain. तो बहुत संभावनाएं हैं कि यदि आप तेजी से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आप फिसलेंगे और आप गिरेंगे। And yet Habakkuk is able to envision God's protection. परंतु फिर भी यहाँ पर भी हबक्कुक जो है वो परमेश्वर की सुरक्षा को देख पाता है And even God's continued strength. और परमेश्वर जो निरंतर जो सामर्थ्य देता है उसको भी वो देख पाता है As he looks at these challenges as adventures. और जैसे कि इस प्रकार की चुनौतियों को या फिर इस प्रकार की चुनौतियों को वो रोमांच के तौर पे ले रहा है। This new hope has given him a realistic yet optimistic perspective. और इस नई आशा ने एक सच्चाई के साथ तो सही परंतु उसके साथ साथ एक हकारात्मक दृष्टिकोण उसे दिया है। He is able to trust God's protection in every adversity. हर एक मुश्किल समयों में वो परमेश्वर की सुरक्षा पर निर्भर रह सकता है And is looking forward to newer challenges that would come. और वो आने वाले नए चुनौतियों के लिए भी उसको वो आगे देख रहा है। There's been a complete shift in Habakkuk's perspective. और यहाँ पर पूर्ण रीति से हबक्कुक का जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो चुका है। Someone who was impatient at the beginning, कोई ऐसा व्यक्ति जो अधीर था शुरुआत में, someone who was worried about the future challenges, कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए बहुत ही चिंतातुर था, when he finds hope in God, जब वो परमेश्वर में अपनी आशा को ढूंढता है there is peace in himself. तो उसके अंदर एक प्रकार की शांति का अनुभव वो करता है He is waiting to face newer challenges. और वो अब तो राह देख रहा है कि वो आने वाली नई चुनौतियों का भी सामना करे, Because he knows that even if he doesn't have a solution, he has God's hope in him. और क्योंकि उसे पता है कि भले ही उसके खुद के अंदर उस समस्या का हल क्यों ना हो परंतु उसको ये पता है कि उसकी आशा तो परमेश्वर में। Let me rephrase Habakkuk's last words in our present context today. और मैं हबक्कुक के जो आखिरी शब्द है वो मैं आज के संदर्भ के अनुसार मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। Maybe that might give us a better understanding of how this hope in waiting upon God can change our perspective. तो शायद ये हमें आज के इस संदर्भ को समझने के लिए, जिसके अंदर हबक्कुक की जो आशा है उसको समझने के लिए और परमेश्वर की राह देखने की जो बात है वो हमें समझने के लिए ज्यादा मदद करेंगे। So these are Habakkuk's words in our current situation. तो ये हबक्कुक के शब्द है हमारे आज की परिस्थिति के अनुसार। Though my mutual funds don't give any return, भले ही मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर जो मैंने पैसे रोके हैं उससे मुझे कोई भी प्रकार का लाभ न हो, nor is there any money left in my savings account, या फिर मेरे जो बचत खाता है उसके अंदर भी यदि कोई पैसा ना बचे,
the produce of my own vegetable garden fails, और यदि मेरे खुद के खेत के अंदर जो भी मैंने सब्जियों को पकाया है उसकी फसल भी अगर निकम्मी हो जाए, and my business yields no income, और या फिर मेरे व्यापार से मुझे कोई भी प्रकार की आमदनी ना मिले, my house owner has cut off my grace period, और मेरा जो मकान मालिक है उसने जो किराया भरने का जो समय है उसको भी काट दिया है अभी, and my friends are ignoring me lest they may help, और मेरे जो मित्र हैं वो भी मेरी घृणा कर रहे हैं, यदि जब तक उन्हें मदद चाहिए तब तक वो मुझे याद करते हैं, yet I will rejoice in the Lord. तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। I will take joy in the God of my salvation. मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मैं प्रसन्न रहूंगा। He makes my feet like the deer's feet. और वो मेरे पांवों को हिरणों के पांवों के समान बनाते हैं। He makes me tread at high places. और वो मुझे ऊंची ऊंची तराइयों में लेके चलता है। Habakkuk's words rings a bell even today. और हबक्कुक के ये शब्द शायद हमारे आज की परिस्थिति में भी इतने ही लागू पड़ते हैं। We have our own set of challenges that no one else can understand. हम व्यक्तिगत रूप से हम प्रत्येक के पास ऐसे चुनौतियां हैं जो शायद हमारे अलावा और कोई समझ ना पाए, But God understands. परंतु परमेश्वर समझता है। Let me close with a short story. एक छोटी सी कहानी से मैं इस पूरे मनन को मैं खत्म करना चाहता हूँ। Horatio Gates Spafford and his wife Anna lived in Chicago some 200 years back. और कुछ करीबन 200 साल पहले होरेशियो गेट्स स्पैफोर्ड और उसकी बीवी आना शिकागो के एक गांव में रहते थे। They were active members in their church and their home was always open to visitors. और वे कलीसिया के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे और उनका घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला था। Horatio was a lawyer and he had a great deal of property in his city. और होरेशियो एक वकील था और उसके पास बहुत ही संपत्ति थी उसके शहर के अंदर। He was also blessed with 5 children. और उसके 5 बच्चे भी थे, 5 संतान थे उसके। However, their 4-year-old son died out of fever. और परंतु तथापि ये हुआ कि उसके 4 साल का एक बेटा बुखार के कारण वो मर गया। 1 year after that, the entire city of Chicago was burned down due to a big fire. और फिर उसके 1 साल के बाद शिकागो का पूरा जो शहर था वो अग्नि में भस्म हो गया, आग लग गई पूरी जगह पे। All of Horatio's properties were destroyed. और होरेशियो की जितनी भी संपत्ति थी उस सब संपत्ति का नाश हो गया। 2 years after the fire, the family decided to travel to England to help D.L. Moody in his preaching tour. और 2 साल के बाद उस परिवार ने ये निश्चय लिया कि वो डीएल मूडी के साथ उनको प्रचार करने की सहायता में वो उनके साथ जाएंगे। So his wife and 4 children, they went ahead and Horatio decided to join them later. तो फिर उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे होरेशियो से पहले इंग्लैंड गए और होरेशियो ने निर्णय लिया कि वो बाद में जुड़ेगा उनके साथ। While the ship was passing through the Atlantic Ocean, और जब वो जहाज अटलांटिक समुद्र पर से जा रहा था, it collided with another ship and it sank. वो दूसरे जहाज के साथ टकरा गया और वो डूब गया। Around 226 lives were lost that day. और उस दिन करीबन 226 जीवनों का अंत हुआ था वहां पर। All 4 children of Horatio died, only his wife survived. और होरेशियो के चारों संतान वहां पर मारे गए, केवल होरेशियो की पत्नी आना जिंदा रही। She sent a telegram to Horatio saying, "Saved alone." और फिर उसने एक प्रकार का तार होरेशियो को भेजा और वहां पर उसने कहा कि मैं अकेली बच गई। Horatio immediately took another ship to be with his wife. और होरेशियो ने तुरंत ही एक जहाज में फिर वो बैठा और अपनी पत्नी के पास जाने के लिए वो निकला। Now, during the journey, there was this one particular day when the captain called Horatio. और फिर उस पूरी यात्रा के अंदर एक नियुक्त गए दिन पे
जो कप्तान था उन्होंने होरेशियो को अपने पास बुलाया। He called him up to the bridge of the ship and showed his maps. और फिर वहां पर अपने पास बुलाकर कप्तान ने उस पूरे जगह का नक्शा होरेशियो को दिखाया। And pointing to his charts, he explained that they were passing by the very spot where the ship had sunk. और फिर वहां पर एक जगह पर दिखाते हुए उसने कहा कि हम अभी उसी जगह से जा रहे हैं जहां पर इससे पहले वो जहाज डूबा था, जहां पर उसके संतानों का मृत्यु हुआ था। And it could be around this place where Horatio has lost all his family. और शायद इसी जगह के इर्द गिर्द आसपास में उसने अपने पूरे परिवार को वहां पर खोया। The story says that Horatio went back to his cabin and wrote a hymn. और फिर वहां पर एक कहानी कहती है कि होरेशियो अपने रूम में वापस गया और फिर उसने वहां पर एक गाना लिखा। And the title of the hymn is the very famous hymn, It is Well with My Soul. और उस गाने का शीर्षक, ये बहुत ही प्रचलित अंग्रेजी गाना है जिसका शीर्षक है It is well with my soul, मतलब मेरे आत्मा के लिए ये अच्छा है। I would like to read out the first 4 lines of this song. और इस गाने के पहली 4 लाइनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। When peace like a river attends my way. जब एक नदी के समान शांति मेरे जीवन में आती है। When sorrows like sea billows roll. और जब दुख भी एक लहरों के समान मेरे जीवन में आते रहते हैं। Whatever my lot, thou hast taught me to say. जो कुछ भी परमेश्वर, जो कुछ भी तूने मुझे कहने को सिखाया है। It is well with my soul. ये अच्छा है मेरे आत्मा के लिए। It requires a great deal of courage to say that it is well with my soul when you have lost almost everything in life. और ये तो बहुत ही बल की या फिर बहुत ही सामर्थ्य की जरूरत है यदि आपको इतनी विषम परिस्थिति के अंदर जिसमें आपने सब कुछ खो दिया है फिर भी आप ये कह सके कि मेरे आत्मा के साथ अच्छा है। He lost all his children, all his wealth. उसने अपने सारे संतानों को गुमा दिया, अपनी सारी संपत्ति को उसने गुमा दिया। All that he worked for his entire life, everything is wiped away. जिन चीजों के लिए उसने उसकी पूरी जिंदगी कार्य करता रहा वो एक ही साथ, एक ही झटके में सब चली गई। And yet Horatio was able to say, it is well with my soul. परंतु फिर भी ऐसी परिस्थिति के अंदर भी होरेशियो ये कह पाया था कि मेरी आत्मा के साथ अच्छा है। He could say that because he found the ultimate hope in God. वो ये इसीलिए कह पाया क्योंकि उसने अपनी पूर्ण आशा जो थी वो परमेश्वर में पाई थी। It is only this hope that changed and transformed his perspective. और केवल ये आशा उसके पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। Each one of us are going through different adversities. और हम में से प्रत्येक लोग अलग प्रकार की मुश्किलों में से गुजर रहे हैं। Some of you may have lost your job or are facing financial challenges. आप में से कई लोगों ने अपनी नौकरियों को गुमाया होगा या फिर आप कोई भी प्रकार से आर्थिक रीति से आप जूझ रहे हैं। Some of you may be going through health issues. आप में से काफी सारे लोगों को शायद तंदुरुस्ती में अनेक प्रश्न हो। Or maybe you may have lost your loved ones during this pandemic. या फिर इस पूरे वैश्विक महामारी के समय में शायद आपने अपने प्रियजनों को गुमाया है। Maybe there's too much of debts and loans and you don't know what to do. शायद या फिर बहुत सारा कर्ज आपके ऊपर है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करेंगे अभी। You may be going through some mental struggle and you are finding it difficult to share with someone. आप शायद कोई भी प्रकार के मानसिक तनाव में से आप गुजर रहे हैं और आप शायद किसी को वो बात बांट भी नहीं पा रहे हैं। Or it could be that you may be going through an addiction and you are unable to come out of it. या फिर ऐसी कोई लत आपको लग गई है जिस लत में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। Habakkuk tells us to wait on the Lord. हबक्कुक हमें कहता है कि हम परमेश्वर के लिए राह देखें। God wasn't angry at Habakkuk for putting his complaint before him. और परमेश्वर हबक्कुक से गुस्सा नहीं था क्योंकि हबक्कुक ने अपनी शिकायत उनके सामने रखी थी। In fact, when Habakkuk complained, God revealed
his future plans to Habakkuk. और उसके विपरीत हम ये पाते हैं कि जब हबक्कुक ने शिकायत की तब परमेश्वर ने उनके आगे के आयोजन को हबक्कुक के सामने रखा। Maybe if we are going through a tough situation, हम भी शायद अगर कोई विकट परिस्थिति में से अगर गुजर रहे हैं, I would encourage you to seek hope in Lord. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप अपनी आशा को परमेश्वर में ढूंढें, Because that is the right place where you will be able to seek hope. क्योंकि वही सही जगह है जहां पर आप अपनी आशा को ढूंढ पाएंगे। And when you find this hope, I would encourage you to let this hope transform your perspective towards life. और जब आप इस आशा को अपने जीवन में पाए तो आप इस आशा को अपने जीवन में परिवर्तन लाने दीजिए ताकि आपके जीवन के जो दृष्टिकोण है वो बदल जाए। It is my prayer ये मेरी प्रार्थना है that we would be able to seek hope in our God कि हम हमारी आशा को परमेश्वर में ढूंढ पाएंगे and would be able to proclaim that hope in a realistic way. और एक सच्चाई भरी रीति में हम उस आशा की घोषणा भी लोगों के सामने कर पाएंगे। As we continue to face challenges in the coming days, आने वाले दिनों में भी जब हम अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का जब हम सामना करें, may this hope that God gives us ये जो आशा है जो परमेश्वर हमें देता है give us strength to face these challenges, वो हमें सामर्थ्य दे कि हम अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना कर पाए with confidence and with determination. विश्वास और दृढ़ता के साथ। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Shall we pray? Father Lord, we want to thank you for being willing to listen to our concerns. We want to thank you for being a very patient God. There are times where we are impatient, when with problems we become restless, we don't know how to solve it, we try to snap at others, we find it difficult to talk to others about our concerns. Father, we want to thank you for being a God who listens, who patiently listens and understands what's going in our hearts and in our minds. Each one of us have really suffered over the last few months, and some have suffered to a great extent, but each one of us have gone through some amount of suffering or challenges. Lord, we pray that as the future looks bleak, as situations become more and more difficult, we want to find hope in you. We pray that you would give us that hope. And it is our desire that the hope that we seek in you, it is that hope that would change our perspective towards life. It would change our perspective towards you and would help us to understand you in a much personal way. Father, we submit this time into your care, and we pray for all those who heard your word, that you bless them and you transform them. In your name we pray and ask. Amen. Now may the love of the Father, the grace of His Son Jesus Christ, and the sweet communion of our Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen.